गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। My suggestion is that instead of throwing the baby out with the bathwater, we had suggested that this scheme be appropriately tweaked after trials. अग्निवीर जो स्कीम है, बिना पार्लियामेंट के डिस्कशन के, बिना स्टेक होल्डर्स के डिस्कशन से एक किस्म से देशवासियों के ऊपर थोपी गई। नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए। एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले। दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे। जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। Apropos the issue of the Agniveer scheme, the simple fact is that from the time it was initiated, I have had certain reservations personally about this scheme, which I have conveyed in all fora, including to the government itself. Now, why was the Agniveer scheme introduced? It was introduced for a very logical reason. What was that reason? The pay bill, the pension bill of the Indian retired people had overtaken the pay bill of the serving armed forces. 1,07,000 crores for the serving people, 1,10,000 crores plus for the retired people. Now that was unsustainable. No government in the world can continue with this kind of a situation if it has to pay for modernization, etc. So there was a need to curtail expenses, but there were discussion on how it could be done. So my suggestion is that instead of throwing the baby out with the bathwater, we had suggested that this scheme be appropriately tweaked after trials to increase the retention of people, Agniveers, from 25% to 50%. Right? That would help us get the best people to retain, and yet a large number of people would integrate well with their units and manpower levels would not come down. Second was to increase the service period from 4 years, which is highly, we feel, inadequate, to 7 years, and if that is somehow not possible, at the very least 5 years. So the minimal that you need to tweak is 5 years plus 50% retention. And then you could continue with this scheme, get the best of both the worlds. The retention of the Agniveers who go out into the national mainstream, the test will come just about 2 years down the line when the first Agniveers start retiring, as to how much they are absorbed by the state governments, how much by the paramilitary forces and by the special central police organization. That will be a big test, because we must ensure
that trained people do not get caught up in the Lawrence Bishnoi gang or the Maoists or any of these people threatening India's national security. That is imperative. That is what I have to say. That has been my view from the outset. I'm afraid that still remains my view. अगर कोई पॉलिटिकल लीडर कह रहा है कि हम इसको नकार देंगे, वो फिर वो तो ये तो जनता की आवाज होगी। अगर वो कहते हैं कि नकारेंगे तो देखी जाएगी, पर हमारे हिसाब से इसको कोई नकारने की जरूरत नहीं है। इसमें जो हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट होगी वो अप एंड डाउन करेंगे। जैसे आप डिफेंस एक्सपर्ट की किस तरह की मॉडिफिकेशंस इसमें होनी चाहिए? देखिए, जब अग्निवीर का जो सोच थी बहुत अच्छी है, सोच अच्छी है, उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है और उन्होंने ये कहा है कि 4 साल के अंदर आप, मैं ये नहीं अब मैं लड़के की बात नहीं कर रहा कि जो भारतीय जो गांव वाला आएगा उसको 4 साल की नौकरी मिलेगी, अब 30-40 हज़ार कमाएगा, 11-12 लाख लेके जाएगा और एक अच्छी नौकरी पाएगा। इससे अच्छा उसको क्या मिलेगा? वो तो ठीक है, पर लोग कह रहे हैं कि तू 4 साल में बाहर आ जाएगा। तो 4 साल में बाहर आने का मतलब ये नहीं कि उसको सड़क पे फेंक देंगे। और भी बड़ी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, 14-15 मेजर इंडस्ट्रीज फॉरवर्ड आई हैं कि हम इनको कुछ ना कुछ काम देंगे। पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ कही जाती है 4 साल बहुत कम है। जो अग्निवीर आएगा उसको कम से कम आप 11 से 14 साल रखिए। देखिए, जो अभी भी फौज आ रही है, फौज जैसे कोई बूढ़ा आदमी थोड़ी आते हैं, वो जंग जवान आता है, 18-19 साल का तो रिक्रूट आता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे हिसाब से जब आप एक फौज में एक लेते हैं किसी को, ठीक है, उसको नौकरी मिल रही है, वो एक पहलू अलग है। जो डिफेंस का पहलू है, आपको उसको क्या सिखाओगे? 4 साल एक बहुत कम उम्र फिगर है, अब पीरियड है। अगर उसको आपको इन्फेंट्री का सेक्शन कमांडर बनाना है, इन्फेंट्री और आर्टिलरी का गनर बनाना है, कोई रडार ऑपरेटर बनाना है, तो ये 3 साल, 1 साल तो इनिशियल ट्रेनिंग, एंट्री, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग, उसके बाद उसको जो टेक्निकल ट्रेनिंग उसकी जो टू द पॉइंट ट्रेनिंग होगी, जो टू द जॉब ट्रेनिंग होगी, वो कितना साल लेगी? वो भी तो लेगी। तो रह सके जब वो रेडी होगा वो बाहर जाने वाला हो जाएगा। रेडी होके बाहर जाने का मतलब क्या हुआ? फिर आपका वो यंग कहाँ गया जिसको आपने तैयार किया था? तो मेरे हिसाब से इसको जो रक्षा मंत्री ने कहा है कि हम मॉडिफाई करेंगे, आप इसको 11 से 14 साल से काम कराइए, तब आपकी जो जितने, जिसको रडार ऑपरेटर की ज़रूरत है, आर्टिलरी गनर की ज़रूरत है, सेक्शन कमांडर इन्फेंट्री की ज़रूरत है, नेवी में जो वेरियस ज़रूरतें हैं वो आराम से पूरी होंगी 11 से 14 साल। उसके बाद एक और सजेशन है, ये सजेशन है, गवर्नमेंट देखती है तो ठीक है, कि ये जो आपने कहा कि हम 25% रिटेन करेंगे, 75% जाएंगे, मेरे हिसाब से 75% को रिटेन करिए, 25% को बाहर भेजिए, और बाहर जो जाने वाला है उसकी नौकरी पक्की करके भेजिए, और विद द प्रोविजन वो साइन करेगा, इन केस देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर नेक्स्ट 10 years you will be called back to fill in the vacancy in case there is an emergency and the country requires you, the nation requires you. ये है, ये जो एकदम से बोलना कि यूथ आगे आ जाएगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो हमारे सैनिक लड़ रहे थे, कोई बड़े जो कारगिल में लड़ रहे थे, सब यंग ही तो है। कौन सा बड़ा बड़ऊ आ गया? पर अगर आप सोचते कि 17-18 साल के लड़के को आप भेज देंगे, उसको तो कुछ पता भी नहीं है, तो करेगा क्या? मैं ये मानता हूँ कि 14 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, पर वो करेगा क्या? तो करने की एक ऑप्टिमम फिगर होती है वो। और अब हमारे जो रिक्रूट आ रहे हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर किसी ने बोल दिया है कहीं पे और उसको मान लिया है किसी ने, मैं उस रिपोर्ट से सहमत नहीं हूँ। कारगिल की रिपोर्ट में भी अगर हुई नहीं, हमारे को कोई अभाव नहीं था कि उसकी उम्र को देख के कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो ये बात, पर अग्निवीर का जो प्लान है वो बहुत अच्छा है। एकदम से देखिए, अग्निवीर लोगों ने मिस कर दिया पॉइंट। अग्निवीर से पूरे भारत के यूथ में एक जो लहर दौड़ जाती है भारतीय रक्षा प्रणाली की तरफ,
और हर एक बच्चा जो पैदा होके जब खेलता था तो वो सैनिक बन के खेलता है। हर एक बच्चा गन लेके सिपाही बनता है, सुभाष चंद्र बोस की यूनिफॉर्म पहनता है, वो पायलट बनने के सपने लेता है, हर एक बच्चा। ये जो है कैरी फॉरवर्ड होगा, ये एक किस्म से एक लहर दौड़ाएगी पूरे देश के अंदर, और सारे बच्चे, सारे लोग एक किस्म से अपने को अग्निवीर समझेंगे। बट अग्निवीर जिस तरीके से मैंने बताया है, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, जैसे रक्षा मंत्री ने प्रॉमिस की है, अगर वो लेके आएंगे तो मेरे जैसे सोच विचार करने वाले लोग तो यही कहेंगे कि ये बहुत ही उम्दा चीज़ हुई है। अग्निवीर जो स्कीम है, बिना पार्लियामेंट के डिस्कशन के, बिना स्टेक होल्डर्स के डिस्कशन से एक किस्म से देशवासियों के ऊपर थोपी गई। इस स्कीम में काफ़ी से ज़्यादा खामियां हैं, और जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं, उनके 90% युवक जो है, उनकी पहली चॉइस थी सर्विसेज को ज्वाइन करना। अभी केवल 10% ही सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। सरकार खुद समझती है कि स्कीम में काफ़ी से ज़्यादा खामियां हैं। इलेक्शन से पहले हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ ने कहा कि हमको मालूम है स्कीम में काफ़ी कमज़ोरियां हैं और हम इन कमज़ोरियों को जल्द दूर करेंगे। मैं चाहता था कि इलेक्शन के मॉरल कोड से पहले उनको दूर कर देना चाहिए था। सरकार ने वास्तव में एक किस्म से हैंडल दिया है अपोजिशन को इसका इस्तेमाल करने के लिए, और राहुल गांधी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में आज जो है देशवासी जो है बॉर्डर स्टेट्स के हैं, वो अग्निवीर स्कीम में नहीं आना चाहते। वो कहते हैं उनकी ज़िंदगी के साथ एक किस्म का खिलवाड़ कर रही है सरकार। और वास्तव में जितने भी वेटरन्स हैं और जितने भी बच्चे गए हैं अग्निवीर स्कीम में, वो उनके माँ बाप और उनके जो रिश्तेदार फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो सरकार को वोट नहीं देंगे। इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है, और इसी का फ़ायदा जो है वो अपोजिशन उठाना चाह रही है, और राहुल गांधी इसी को बार बार उछाल रहे हैं। पर वो कह रहे हैं कि दो तरह की जरूरत नहीं है देश को, तो वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि जो चीज़ें जिनकी शहादत हो जाती है उसके बाद मिलती है, वो चीज़ें अग्निवीर योजना के तहत जो अग्निवीर हैं उनको नहीं मिल रही है। वास्तव में वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं उनसे सहमत हूँ कि दो प्रकार के शहीद नहीं होने चाहिए। जो भी फौज में मारा जाता है वो एक किस्म से देश के लिए, देश की एकता, देश की अखंडता के लिए अपनी जान की कुर्बानी देते हैं। लेकिन अपोजिशन को ऐसा मुद्दा अपनी सरकार ने दे दिया है जिसको तोड़ मरोड़ कर अपोजिशन पेश कर रही है, और राहुल गांधी उसी का फ़ायदा उठा रहे हैं और कह रहे हैं दो प्रकार के शहीदों की आवश्यकता नहीं है।